ایک ایسا سیگمنٹ جہاں ہم اپنے صحت سے ریلیٹڈ سارے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں، ڈاکٹر سے بھی اور ساتھ ساتھ حکیم سے بھی، تاکہ ہمیں دونوں بیلنس پتہ چلے، طب میں کیا کیا علاج ہے، طب میں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں فائدہ مند ہیں جو ہمیں استعمال کرنی چاہیے. اور آج مینلی ہم بات کر رہے ہیں معدے کے امراض کے بارے میں. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر راؤ علی بابر اینڈ مفتی نور رحمانی صاحب. سروت آبا تو میرے ساتھ موجود ہے. اچھا، بہت لوگ جانتے ہیں مگر مجھے ابھی پتہ چلا، آج پتہ چلا کہ مفتی صاحب آپ حکیم بھی ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. تو آج مطلب ہمیں بہت انٹرسٹنگ میں نہ چیزیں. صرف میں حکیم بلکہ میرے والد صاحب قبلہ حکیم سید محمد سرفراز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ 1990 کے اندر پورے سندھ میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا اس زمانے میں. اچھا، جی ایکسلنٹ، زبردست. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے معدے کی صحت اور جو اس کا سسٹم ہے کیا بہتر ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے ویسے تو، لیکن ہماری جو ہیبٹس ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں افطاری میں، سحری میں، یکدم نا. تو ویسے جو روزہ رکھا گیا ہے، روزے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک لمبے عرصے کے لیے پیٹ کو خالی رکھیں گے تو پیٹ کو جو ہے نا وہ ٹائم ملے گا اپنے سیلز رینیو کرنے کا. تو اچھا، سیلز رینیو اس کو ہوں بھی گے تو وہ بریک بہتر ملتا ہے نا، ہوگا. ورنہ بریک ملتا ہے، تھرو ورنہ تو ہم آؤٹ. ہر ٹائم کھاتے رہتے ہیں تو وہ بریک نہیں مل پاتا اس کو. تو وہ ایک اچھی چیز ہے، نیچرل وے سے جو ہے نا آپ کو ایک ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ میدا اپنے سیلز جو ہے رینیو کر لیتا ہے، تو وہ بہتر رہتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم افطاری میں بہت زیادہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ آئلی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، So ساری then تلی ہوئی that's چیزیں. not good. مطلب آپ نے روزہ کیا، آپ نے بریک دیا، لیکن ایک دم بہت ہیوی بہت چیزیں ہیوی آپ نے چیزیں کھا آپ لی. نے لے لی تو وہ پھر جو ہے نا میدے کو ہضم کرنے میں ٹائم لگے گا، پھر بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں ساتھ میں، بالکل. تو وہ چیزیں ساری پھول اور جاتی ہیں، اور لیٹ پھر جاتے جو ہیں. ہے لیٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ انڈائجیشن اور پھر وہ ہارٹ برن یہ والے ایشو سارے ہو رہے ہوتے ہیں. پھر رات میں جو ہے وہ میڈیسنز وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ دہی کا استعمال کہتے ہیں کہ معدے کے لیے بہترین ہوتا ہے، تو بتائیں یہ اور کون سی چیزیں ہیں طب میں جو معدے کی بہتری کے لیے استعمال کی جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کھجور کے استعمال کرتے تھے، اس کے ساتھ ککڑی کا بھی استعمال کرتے تھے، یا کھیرا. اس کی جو گرمی ہوتی ہے، جو حدت ہوتی ہے، جو کھیرا یا ککڑی وہ ایسی سبزی ہے کہ اللہ نے ایسی بنائی کہ اس کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو مار دیتی ہے، اس کی گرمی اس کی ٹھنڈک کو مار دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تھا تناول فرمانے کا، آپ کو بہترین دنیا کا بہترین ڈائٹ پلان تھا. حضور علیہ السلام سحری کے اندر یا افطار کے اندر تلا ہوا کوئی چیز نہیں کھاتے تھے. آپ نے کھجور استعمال کی، آپ نے دلیہ کا استعمال فرمایا، اور آپ نے روزہ رکھ لیا. دہی کا استعمال، یا پھر جن کو معدے کے اندر تکلیف رہتی ہے، میں آج ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو اور جو آسانی سے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. جن کے سینے میں معدے پہ سوجن آ جاتی ہے، جس طرح ابھی میرے بھائی ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ کھانے کے بعد لیٹ جاتے ہیں، معدے پہ بھاری پن سا آ جاتا ہے، یا کہ جو کھٹی ڈکاریں بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ دشمن اسلام سمجھ کے پکوڑوں میں ٹوٹ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس کو ختم کرنا ہے، وہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد رات بھر تکلیف میں رہتے ہیں. اگر وہ 1 یا 3 انجیر کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دہی کا استعمال کریں گے، تو جو معدے کے اندر زخم ہوں گے یا معدے میں سوجن ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. ایکسلنٹ. جی آپ دہی کے تو کوئی ساتھ اسپیسیفک وقت ہے؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ لیکن صبح میں کھائیں شام میں نہیں؟ ہاں ایسا اگر کچھ؟ نہار منہ آپ استعمال کریں گے، لیکن کھانے کو کھانے کی طرح رکھیں، روزے کو روزہ سمجھ کر رکھیں. ہماری اصل میں سب یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اب مجھ سے ایک سوال کیا گیا کب تک کھا سکتے ہیں اور کب تک پی سکتے ہیں. بھائی آپ انسان کے بچے ہیں، اللہ نے آپ کو اونٹ تھوڑی بنایا کہ آپ جو 8 گلاس پی لیں. اور سحری میں ہوتا ہے نا کہ میں کھا لوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھوک لگے تو میں زیادہ پانی پی لوں. ہاں تو ایسا نہیں ہے، آپ اپنے غذا کو کم سے کم رکھیں. یہ پورا سال ایک طریقے سے بطور حکیم میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اللہ نے بنایا کہ آپ اپنے معدے کو ریلیکس کریں، آپ اپنے معدے کو بھی ٹائم دیں تاکہ وہ ہاضمہ اور میٹابولزم اچھے طریقے سے کر سکے. آپ کم سے کم کھائیں، 1 روٹی یا 2 روٹی کھائیں، اور اس کے بعد ہلکی غذا اور فروٹ کا استعمال کریں، یا پھر کھجوروں کا استعمال کریں، انجیر کا استعمال کریں، تو آپ کا معدہ طاقتور ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ معدہ کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ جیسے مجھے پتا ہے کہ میں کسی کو جانتی ہوں تو وہ ہمیشہ اس کی یہ شکایت ہے، میں یہ نہیں کھا سکتی، میں وہ نہیں کھا سکتی، میں صرف دہی، وہ بیچاری صرف دہی، کبھی کبھار روٹی کھا لیتی تھی تو اس کے لیے بھی ہضم کرنا مشکل، چاول مشکل، تو مطلب اس کے آپشنز بڑے لمیٹڈ ہو جاتے تھے، اس سے پھر بیمار، کام پہ نہیں جانا، یہ یہ جو ہے ساری نا چیزیں. کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں بہت کمپلیکیٹڈ بیماریز بھی ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. لوگ یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ میدا بس ایک عام سی چیز ہے اور عام سے کوئی بیماری انڈائجیشن وغیرہ ہی ہوگی، لیکن بعض اوقات جو ہے نا الرجک ہو جاتا ہے میدا چیزوں سے، تو پھر وہ یہ ایشوز آتے ہیں کہ وہ جو ہے نا جو پروڈکٹ الرجی والی ہے اس کے اندر، وہ کسی بھی اگر غذائی چیز میں ہے تو اس سے الرجک ہو جائے گا، وہ آپ کھائیں گے تو پھر آپ کو وامٹنگ یا ڈائریا وغیرہ ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے. ایک تو الرجی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، دوسرا اگر کوئی بہت زیادہ پین کلرز میڈیکیشنز وغیرہ یوز کر رہے ہیں خود سے ہی
मतलब दर्द वगैरह है तो कोई भी पेन किलर ले रहा है तो उसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं मैदे के अंदर, अच्छा। उसकी वजह से भी हो सकता है। कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तली हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, स्मोकिंग जो है, ये सब चीज़ें जो है ना ये सब एग्रवेट करती हैं इसको, अल्सर्स को। तो अल्सर्स हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि उन्हें खाने में मसला होगा, तकलीफ़ होगी, हाजमे में भी इश्यूज़ होंगे और फिर ये वॉमिटिंग डायरिया वाले इश्यूज़ भी होंगे साथ में। तो इसलिए बेहतर यह है कि इन चीज़ों से अवॉइड करें और सादा चीज़ें खाएं, सादा ग़िज़ाएँ खाएं, फ्रूट्स खाएं, तली हुई सिंपल चीज़ें कम से कम चीजें, खाएं, सिंपल बिल्कुल। चीज़ें बिल्कुल जो हैं वो खाएं। और जैसे सुन्नत है हमारी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपको अगर 2 रोटियों की भूख है तो आप 1 रोटी खाएं, आधा पेट बचा के खाएं ताकि जगह हो उसमें, आप इजीली वो अच्छा हज़म हो अच्छा जाएं। डॉक्टर साहब, आजकल ये भी तो हो गया, बच्चे बच्चे जी। तब तक नहीं खाते जब तक सामने फोन नहीं लगा दिया, कोई कार्टून ना लगा, तो वो एक जो वो होता है ना, आप देखते देखते खाते हैं, आप बस फालतू में खा रहे होते हैं आप। और जैसी, क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी बड़ी कोशिश होती है बच्ची फ़ोन ना देखे और तरीके से तमीज़ से खाए, जैसे हम बचपन में खाते थे, हमें तो अलाउड नहीं था इस तरह की कोई भी चीज़। तो अब वो फ़ोन जैसी उससे ले लो ना, भूख खत्म हो जाती है। ये है कि ये हैबिट बन जाती है कि वो एक सीक्वेंस में डेली आप उसी तरह से दे हाँ, रहे हैं ना फूड उन्हें, तो कि वो उनका बोरियत हर चीज़ में एंटरटेनमेंट चाहिए आपको। उनकी जो है ना हैबिट बन जाती है कि वो टीवी देखते हुए खाएंगे, अदरवाइज़ नहीं खाएंगे। और ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि ऐसे करने से जो है ना वो रिसर्चेस हुई हैं इस पे, तो उन रिसर्चेस में यही आया है कि जो मैदा है ना वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। अगर आप टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं तो वो मैदा उस तरह से काम नहीं करेगा, और क्योंकि आपको फिर आपका पता भी ब्रेन तो जो नहीं है होता ना आप कितना खा रहे कितना हो। खा रहे हैं, आपका ब्रेन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर आपको पता नहीं होता कितना खा रहे हैं, तो फिर वो सिग्नल्स नहीं जाते हैं मैदे को उस तरह से, तो फिर उस तरह से मैदा जो है ना अपना अमल शो नहीं बिल्कुल। करता। अच्छा, मुफ्ती साहब के तरफ बढ़ेंगे। अभी मैं हकीम ने, अभी मैं मुफ्ती साहब के पास आई, मैं ये पूछना चाह रही हूँ मुफ्ती साहब, देखिए आप खाने के भी तरीक़ेकार होते हैं, जैसे मैंने जो बताया बिल्कुल गलत है, तो हमारे दीन में, हमारे मज़हब में क्या कोई तरीका बताया हुआ है कि किस तरह हर चीज़ के आदाब होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खाने के आदाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से तनावुल फरमाते थे, और जो आपकी प्लेट होता था अपने सामने का हिस्से को आप फरमाते थे तो खूब चबा चबा के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ था कि वो हज़म फरमाते थे। और अगर आप इसको बतौर हकीम देखें, तिब के हवाले से देखें, तो आपका जो मेटाबॉलिज़्म होता है वो बहुत अच्छा होता है, हमारे ग़िज़ा को चबाया नहीं जाता। आप जो कह रही हैं कि मैदे की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत तेज़ी से लोग जो खाना खा रहे होते हैं सुरअत के साथ उनका मैदा कमज़ोर हो जाता है। या वो लोग, बहुत सारे लोग कि जो बादी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे आलू है, बैगन है, पालक है, चने की दाल है, बड़े का गोश्त है, इसका बहुत ज़्यादा, या जिन ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, उनके मैदे कमज़ोर हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नहीं क्या इस्तेमाल फरमा रहे हैं, आप कद्दू को ज़्यादा पसंद फरमाते हैं, आप लौकी को पसंद फरमाते हैं, आप टिंडे को पसंद फरमाते हैं। इस तरह की जो लाइट ग़िज़ा है, जौ का दलिया, अब यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, जो मैदे की जो अमराज में जो मुब्तला लोग हैं, आप सबसे बेहतरीन उनके लिए ये है कि आप उनको सुबह कहें कि जौ का दलिया इस्तेमाल करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जौ का दलिया इस्तेमाल कसरत से करते थे। मेरे ख़ुद मैदे के अंदर तकलीफ़ हुई और बहुत ज़्यादा सूजन आई मैदे पे, मैंने रिसर्च की मैं क्या करना चाहिए। मैंने नबी इस्लाम की सुन्नत जौ का दलिया 7 दिन लगातार इस्तेमाल किया। सनम बहन, मेरे जो मैदे पे सूजन थी वो सूजन ख़त्म हो गई। माशाल्लाह। मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं ली, मैंने कोई अपनी हिकमत की दवा ली, नबी अलैहिस्सलाम के अंदाज़ को देखा। अच्छा, हुज़ूर सल्लम फजर की नमाज़ के बाद खा रहे हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम दोपहर में थोड़ा सा आपने फरमाया, खाया, ठीक है, उसके बाद आपने मगरिब पहले या मगरिब के बाद आपने खाना फरमा लिया, वॉक की इशा की नमाज़ के बाद। हमारे पता क्या अच्छा होता है, देखिए, एक्सरसाइज की भी इम्पोर्टेंस है, वॉक हाँ, भी करते मुझे थे। तो अच्छा, लगता नबी है कि साहब- सनम जो कुछ भी इस्लाम के बेहतरीन और ज़रीन उसूल है वो आज हाँ। की जदीद दुनिया मॉडर्न साइंस में सब कुछ साबित अच्छा, कर आप रही है। करते क्या आते हैं नबी इस्लाम, हमारी क्या होता है, जैसे हम खाना खाया हमने रात में, मैदे की अक्सर तकलीफ क्या होती है, आपने रात में खाना खाया, आप दोनों ख़वातीन हैं, आपने खाना बनाया और सख्त गर्मी के अंदर खाना आपने रख दिया, क्या होगा 4-5 घंटे के बाद, खराब। बैक्टीरियाज आ जाएंगे। आएंगे, सड़ जाएंगे, उसमें बदबू आएगी। आपने रात में खाना देर से खाया, 12-1-2 बजे खाना खाया, और खाना खाते आप सो गए। आप जैसे ही सोए, वो जो खाना था वो मैदे के अंदर जाके सड़ गया। जब वो सड़ गया तो आपको तबखीर मैदा शुरू हो गई, आपको खट्टी डगारें आना शुरू हो गई, आप बर्निंग शुरू हो गई, जलन शुरू हो गई। अब नबी अलैहिस्सलाम मगरिब की नमाज के बाद आप फरमा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, सहाबा कराम में खेतों में चले गए, जो वहाँ खजूर के दरख्त में गए, पानी में आप वॉक कर रहे हैं, आप पानी में आपने पैर डाले हुए। और मैंने हदीस पढ़ी तो मैं आज सोचता हूँ तो बड़ा अजीब है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रहा है, हमें मुख्तलिफ किस्म के अमराज हो रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, बिल्कुल। हुजूर पैर में पानी डाले हुए और पानी इस तरह तेज़ी चल रहा है। आप आज डाल के देखें, अब आपकी जो वेंसिस होती हैं पाँव के पास या यहाँ की या पैर के पास, अगर वो प्रेशर के साथ पानी आता रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, आपको जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये, फिर हुजूर का वॉक करना, फिर हुजूर का कम खाना,
हुजूर अलैहिस्सलाम के अपनी प्लेट में से उस जगह से खाना, अच्छी तरह चबा के खाना, कम खाना, कम खाना, अच्छा खाना। कम सोना, कम बात करना, कम देखिए बोलना, बिल्कुल कम खाना मगर अच्छा खाना। बिल्कुल हमारे यहाँ ज्यादा खाना और मगर उसके बुरा साथ खाना। हाँ बुरा खाना। हाँ बुरा नुकसानदेह फास्ट फूड सारी बिल्कुल। अच्छा ये समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे मेरे ख्याल से वक्त के साथ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने खाने में, अपने पीने में, तब्दीलियाँ ला रहे हैं, तेल का इस्तेमाल कम करें। अच्छा तेल की वजह से भी मैदे में प्रॉब्लम्स होती हैं वैसे? हाँ, तेल की वजह से भी होते हैं। ऑयली चीज़ें जितनी भी आप खाते हैं फैट्स ज़्यादा होते हैं, जितना फैट ज़्यादा होगा तो मैदा जो है मुख्तलिफ हार्मोन सेक्रेट करता है, तो उसमें जो है ना वो एसिड सेक्रेट करेगा, उसको हाजमे के लिए ज़रूरी है एसिड, नेचुरल एसिड प्रोड्यूस होता है मैदे के अंदर। लेकिन अच्छा। जितना ज़्यादा ऑयली चीज़ होगी उतना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, तो फिर उतना ज़्यादा आपको हार्ट बर्न के इश्यूज़ अच्छा होंगे। डॉक्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो 25 साल के, छोटा सा है, सो रोटी खाते हैं या तो पता नहीं कोई बाहर की रोटी है या कौन सी रोटी है, हाँ बाहर की जब रोटी खाते हैं तो एकदम पेट खराब हो जाता है। तो बड़ा हमारे लिए होता है कि सेंसिटिव हो जाते हैं लोग जो है काफी ना, क्योंकि सेंसिटिव बाहर है का उनके जो साथ। आटा है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। जो तो आटा बाहर है की उसमें चीजें ऐसे जो लोगों को बिल्कुल अवॉइड करनी जी चाहिए। जो मैदा वगैरह वो निकाल लेते हैं और बिल्कुल जो है ना वाइट आटा मिल रहा होता है बाहर, तो उसमें फाइबर कम होता है, तो तो उसकी मतलब वजह से ब्राउन जो है आटा ना इस्तेमाल ब्राउन आटा करना यूज़ चाहिए। करें तो वो ज़्यादा और बेहतर ऐसे लोगों को रहेगा। घर का खाना घर का इस्तेमाल, आटा अगर मिर्च घर का विर्च खाना ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाहर से अवॉइड करें जितना हो सके, घर में आके खाएं या घर से बिल्कुल। साथ ले जाएं, इस अच्छा तरह मुफ्ती से। साहब, तिब में कोई ख़ास ऐसी चीज़ है कि अगर हम अभी से, जैसे मेरे मैदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं कि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो तो उस चीज़ को इस्तेमाल करूं, और फिर प्लीज़ मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए भी बता दें आप कोई देखिए चीज़। आपके जो ब्रदर इन लॉ के जो मसला है, आटों में खुश्की आ जाती है। नबी पाक सल्लम जो आटा इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा ब्राउन आटा, ठीक है, वो आटा बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। आटों में जो खुश्की आ जाती है उस खुश्की को ख़त्म कर देता है और इस तरह की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि उनको चाहिए सुबह निहार में 3 इंजीर का इस्तेमाल करें, मैं तो लिखूंगी। और इसपोगोल इस्तेमाल करें, इंजीर इस्तेमाल करें, मैदे की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इंजीर जो को भिगो के, जी, अगर वो भिगो लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। भिगो के वो नरम हो जाए, उसका पानी भी पी लें और खा भी लें। बिल्कुल ऐसा है, और ये ठीक है। बेहतरीन हो जाएगा। तो हमें ऐसे आम ग़िज़ा में क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि अभी रमज़ान के अंदर भी हमारा मैदा अच्छा रहे। एक तो आप कम खाएं, चबा के खाएं, कोशिश करें फ्रूट्स वगैरह खाएं, जौ का दलिया इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, और रात में अगर आप रात खाती ही मत सोएं, सही है। यह आपके मैदे को बहुत नुकसान वक्फा। देगा। कम से कम 2 वक्फा से 3 घंटे का वक्फा रखें खाने में और सोने में। बिल्कुल। अच्छा वो एंजाइना के अटैक वाला भी सवाल कर लेते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको मैदे में दर्द होता है और आपको लगता है कि दिल में दर्द हो रहा है, हार्ट, जी और कभी कभार उल्टा होता है कि उल्टा आप होता है। प्रिटेंड आपको हो रहा होता है अटैक और आप कहते हैं नहीं नहीं मैदे का प्रॉब्लम इसमें है। ये है कि अगर आपको पेन हो रहा है मैदे में, साथ में उल्टियाँ लग रही हैं और साथ में आपको लग रहा है चेस्ट टाइटनेस है, सांस में मसला हो रहा है, तो आप इग्नोर ना करें इनको, एक दफ़ा जाके ईसीजी करवा लें कहीं से भी, तो वो पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर कोई अटैक वाला इशू हुआ एंजाइना वाला तो ईसीजी में आ जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि 2-3 दिन तक इसी तरह से मैदे के चक्कर में रहते हैं कि ये वॉमिटिंग वगैरह मैदे की बड़ा वजह से है। अनकंफर्टेबल होता है बिल्कुल। और ये जो है फिर जब वो ईसीजी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनको बहुत बड़ा एमआई हुआ था 3 दिन पहले और अब वो लेट हो गए हैं। अगर वो उसी टाइम पे आते हैं तो फौरी तौर पर उनकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, तो बिल्कुल वो जी, चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत बेहतर बहुत रहती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब। इसके साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में, आपसे मुलाकात करते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम